Praise the Lord and good evening, everyone. Once again, we welcome you all in the name of our Lord Jesus Christ. हम सभी का जो है इस अनवेल टॉक्स में परमेश्वर के नाम में हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं और हम जो है ये हमारा 8th एपिसोड है और इस शाम के टाइम में जो है आप हमारे साथ जुड़ेंगे या फिर बाद में you'll also log in after some time. We would like to welcome each and everyone. So so Unveil Talks is all about having a personalized conversation with our guest. So far, we have received very powerful testimonies, and we really want to thank God, Jesus, Holy Spirit, the Trinity power for this. And really, we are very blessed to hear the testimonies. And one of the testimonies which I want to share with you, because like my friend who is in my college, she saw the status and she said that, can you please send me the link? And she doesn't know Christ, and this is how it happened. And when she saw, she was so blessed by the session, and she's been watching. I really want to welcome you, Akansha, and we want to thank God. And like I said, you can be blessing to many other and anyone. So share the link as much as possible. So what are we doing at Unveiled Talks? Unveiled Talks is all about having a personalized conversation with the guest, knowing about their journey, knowing about the story of strength, story of pain, story of struggle. So we have always seen them worshiping, worshippers worshiping, preachers preaching, but we don't know how they have embraced their calling and how they have sustained so far in whatever calling they are. May it be worshiping, or may it be a pastoral calling. So this is the time we are here to know about their journey. So my name is Preeti Reddy, and with my co-host Ralston David. Hello, good evening, everybody. This is a wonderful time that the Lord has given us. And I and Preeti, we are excited and we are really glad to welcome each and everyone who is watching right now and those who will be watching later as well. And this is the amazing time that we are having this season of Unveil Talks with our multiple guests. And it's been a blessing to many. I'm really encouraged by the testimonies that are coming in. I'm really encouraged by the responses that are coming in. We are encouraged as a team, as a church. We are encouraged to serve our people with gladness and with great joy. And I would really encourage you all right now, wherever you are, just share the link with your family, with your friends. Get your people along today. It's hardly 45 minutes right now, and let's have a great time together. Let's hear from our guests what they have to speak, and let's have a wonderful conversation today, and be blessed and be encouraged. I really want to encourage you to share the link as much as possible and be a blessing to someone today. Over to you, Preeti. Yes, like Ralston said, be a blessing to some other of your friends or relatives, and also we wanted to share one more testimony where, like, I take a youth meeting, and in my youth, there is one girl who was just scrolling the Facebook. As she said, she was just scrolling the Facebook, and when she saw the video of Shelly Reddy, where she heard that, uh, the main thing which touched her was a story. When Shelley said that, Mm. I was always placed on the back, and she could connect to the story, and she was really touched, and she was really blessed as well. So this is how we are having this Unveiled Talks.
lifting up the veil of the people who are in the forefront, and the youth of this generation would know that they even have the same story, same struggle like them. So yes, Yes. and one more thing is, like I said about sharing the link and posting the posters on your WhatsApp, on your Facebook, on your Instagram. We have only one motto, is that you would become an encourager or a motivator or through your life to someone. This is the motto, and it would be a blessing. And before we call upon our guest today, would like to introduce to you that our today's guest happens to be a pastor, a worshiper, a musician, and a teacher. And is having a wonderful ministry and a wonderful church, house of praise ministry. Yeah, so really want to thank God for his ministry, for his life. And before I welcome him, मैं उनको बुलाने से पहले मैं आपको एक और उनकी मिनिस्ट्री की बारे में बताना चाहती हूँ। जब आज मैं किचन में थी तो मेरा भाई मुझे बता रहा था कि वो और उसका जो दोस्त है, वो लोग टैक्सी में सफर कर रहे थे। मैं नहीं जानती ओला था, टैक्सी था, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, बट इट वाज एन ट्रांसपोर्टेशन which they were traveling, and तो वो और उसका दोस्त ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे, and this driver intervened and he said आपको परमेश्वर के बारे में पता है क्या, आप यीशु को जानते हो क्या, and like that he started the conversation. And Jonathan, my brother, he was just listening, वो सिर्फ सुन रहा था, he already knew कि वो क्या कर रहे हैं करके, so but he was just listening. And ही सेड मेरे पास बाइबल भी है, कि आप ये बाइबल ले सकते हो। सो फिर मेरे भाई ने बताया उनको कि क्या है ना, मैं भी मसीह हूँ, आप कौन से चर्च से है और आपका पास्टर कौन है। तो उन्होंने बोला मेरा पास्टर का नाम है जस्टिन जगले। सो एंड मैं इनके चर्च से हूँ। सो इट्स अ वंडरफुल मिनिस्ट्री वे हिज चर्च पीपल आर डूइंग टू। सो आई वॉज रियली एनकरेज। और आज ही उन्होंने, मेरे भाई ने मुझे ये कहानी को बताया। सो मैंने बोला ये मैं जरूर उनके इंट्रोडक्शन में शेयर करूंगी। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, लेट्स वेलकम, आई एम सब हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनका स्वागत करें, पास्टर जस्टिन जगले। हेलो पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। Praise Lord, Pastor. Praise Lord. पास्टर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर आए और आपने हमारा इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है। एंड परमेश्वर सच में आपको और आपकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करे। और इस समय जो है पास्टर, हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको सो फार, मतलब यहाँ तक कैसे लेकर आया, आपकी स्टोरी क्या है। ओवर टू यू पास्टर। अच्छा, शुक्रिया प्रीति। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अगर परमेश्वर ना होता तो मेरी स्टोरी ही स्टार्ट नहीं होती, है ना। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से, यानी जो लोग सुनने वाले या सुन रहे हैं, उनको मेरा यह विश्वास है कि मेरी जर्नी के द्वारा, ये टेस्टिमनी के द्वारा, या फिर मेरे जीवन के सफर के द्वारा जो प्रभु ने मिरेकल्स किए हैं, उनके लाइफ को ब्लेस करे, उन्हें मोटिवेट करे, उनको आगे बढ़ाए, है ना। तो मैं अपनी जर्नी इस रीति से स्टार्ट करना चाहूंगा कि मेरी परवरिश या फिर मेरी पैदाइश, यानी मेरा जन्म जो है ये क्रिश्चियन फैमिली में हुआ है। और मेरी मम्मी मुझे बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि मैं दुनिया में आऊं। उन्होंने उस समय में, यानी मेडिसिन ले रही थी कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर जो है बचाने वाला है ना। और परमेश्वर के प्लान कुछ और होते हैं। तो मैं एक मसीह परिवार में जन्म हुआ, और करीबन जब बड़ा हुआ, लेकिन मैं बचपन से ही संडे स्कूल में, चर्च में जाना, उसके एक्टिविटीज में रहना, हर एक कामों में मैं हमेशा रहता। लेकिन मुझे गाने का भी बड़ा शौक था पहल बचपन से ही। और मेरा जो घराना है, मेरी जो फैमिली है, उसमें हर कोई म्यूजिशियंस है, कोई सिंगर है, तो ये पहले से है।
तो ये मानो पैदाइशी गुण प्रभु ने मुझे दिए थे। तो उस रीति से मैं चर्च में भी गाता रहा, यूथ में भी, और फिर साथ ही साथ मैं अपने स्कूल में नंबर 1 का सिंगर भी रहा। क्योंकि और ऐसा Wow. होता मेरे साथ कि अगर मुझे सुबह मेरा स्कूल होता था और टीचर मुझे छूटने से पहले 12:30 बजे मेरी स्कूल छूटती थी, तो उससे पहले मुझे बोलता था अभी तुम्हें तैयार होना है, सिंगिंग करने जाना है। और मैं कोई प्रिपेयर नहीं, कुछ नहीं, तो वो मुझे एक 10 मिनट में एक सॉन्ग सुनाती और फिर मैं उसको कैच करता और फिर जाकर जब हम लोग सिंगिंग करते, तो फिर वो फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ मुझे आ ही जाता। तो इस रीति से Wow. सफ़र जो है शुरू हुआ और फिर जब उम्र मेरा करीबन एक 14-15 साल का हुआ, तो फिर अपने दोस्तों में, स्कूल के फ्रेंड्स में ऐसा सफ़र रहा कि मैं फिर लोगों के साथ मारा-मारी के ये सारे, क्योंकि यंग एज था, गर्म खून था, यानी हम्म, मारपीट की बातें ही ज़्यादा होती थी। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो पढ़े-लिखे नहीं थे और वो Oh. ऐसे फ्रेंड्स थे जो यानी गाली-गलौज करना या फिर मारपीट करना, इसमें बहुत वो थे। तो फिर मेरी परवरिश भी उनके बीच में ही ऐसे होने लगी। तो मैं चर्च में भी जाता रहा, लेकिन चर्च पे उतना फ़ोकस नहीं था, यानी परमेश्वर का भय नहीं था। लेकिन गाना गाने का मेरा तो वो हॉबी था, मेरी आदत थी और उसके लिए बहुत मैं फिर वो क्रिसमस का कैरल सिंगिंग हो, तो फिर मैं बड़ों के बीच में मैं ही छोटा होता और ढोलक उठाए मैं जाता, लोगों के बीच में गाना गाता, बड़े जोश-खरोश में। लेकिन जैसे मेरी उम्र 14-15 साल हो गई, फिर मुझे ये सारी बातें जो है धीरे-धीरे जो पकड़ने लगी। मैं लड़ाई करने लगा, शराब पीने लगा और फिर Oh. ऐसा सब होते-होते फिर उम्र जब मेरी 18 साल की हुई, जब मैं एज ऑफ 18 में आया तो फिर मैं एक्सरसाइज़ करने में बहुत वो होने लगा। फिर मैं ऐसा एक्सरसाइज़ करता था करीबन 2 से ढाई घंटे और यानी बॉडी बनाना थोड़ा-सा ऐसा दिखना कि लोग मुझे देख के डर जाएँ वगैरह-वगैरह। तो ये सब बहुत माइंड में क्रेज़ था उन दिनों में, बॉडी बिल्डिंग का बहुत क्रेज़ था और फिर उस रीति से जर्नी में फिर एक समय आया कि मैं बहुत बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार पड़ गया कि जब बॉडी थी तो मैं एक एक ही बार में 2-3 जन को मार सकता था, लेकिन जब मैं बीमार पड़ गया तो 2-3 जन मुझे उठाने के लिए खड़े हो गए। तो वो एक हास्यास्पद ऐसी बात थी, लेकिन ये हकीकत थी कि उस समय मेरे ख़्याल से मेरा परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होने वाला समय था। क्योंकि अब तक तो मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ था। हर गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, न्यू ईयर इसमें नए कपड़े पहनना, फिर वो सैड के समय 40 दिन के उपवास, वो सब बातें ज़हन में रहती थी। और मैं ये ही सीखता आ रहा था कि जब 40 दिन का उपवास हो तो उस समय कोई खुशी के गीत नहीं गाना, सब सैड सॉन्ग गाना क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए हैं। तो ये सारी बातें थी, लेकिन जब 18 साल का हुआ जब मैं बीमार पड़ा, तब मेरी मम्मी ने 2 सेवकों को मेरे घर बुलाया और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो एक सेवक ने मुझसे कहा कि मैं देख रहा हूँ, वो विज़न देख रहे थे, एक दर्शन, जिसमें देख रहे थे कि मेरे अंदर से कोई अंधकार जा रहा था और मेरे ऊपर रोशनी आ रही थी। और जैसे वो बोल रहे थे, उसी समय मैं उसको देख भी रहा था, महसूस भी कर रहा था कि कुछ तो मेरे अंदर से एकदम झटके में निकल गया और परमेश्वर का एक तेज रोशनी जो है मेरे ऊपर आ पड़ा और जैसे ही उन्होंने प्रेयर खत्म की, मैं पूरी तरह से चंगा हो गया। मैं पूरी तरह से आई एम हील्ड टोटली। तो उस समय में मैंने महसूस किया कि कुछ तो मेरे साथ हुआ। ऐसा बदलाव मैंने पहले कभी नहीं देखा, ऐसा टच भी नहीं देखा, ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं देखा। तो ये एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था और जब मैंने इस एक्सपीरियंस को फिर उसके बाद मैंने यानी ये बात है सन 1999 यानी 1999 की बात है। तब मैंने अपना जीवन 1999 31st को मैंने अपना पूरा जीवन प्रभु को डेडिकेट कर दिया कि लॉर्ड मैं तेरे लिए जीऊँगा और मैं 18 साल की उम्र में प्रभु को अपना जीवन दे बैठा। और Wow. उस दिन फिर उसके बाद मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया और मैं इतना बाइबल पढ़ने लगा कि मेरी मम्मी को लगा कि मैं पागल हो गया। और वो
उस सेवक के पास आकर कहने लगे, उसको जरा देखिए, वो हर 2-2 5-5 मिनट में बाइबल पढ़ने लगा है, वो प्रेयर करने लगा। क्या हो गया? क्या उसका मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया? लेकिन वो परमेश्वर का डिवाइन टच था, एक अलौकिक स्पर्श था, जो कोई नहीं समझ सकता था, वो मैं ही समझ पा रहा था। और फिर उस समय उस सेवक ने कहा, ये प्रभु का काम है, ये होने दो। और फिर उसके बाद फिर मैं सन 2000 में ईयर ऑफ 2000 मैं बाइबल कॉलेज गया, रायकोटा ELM करके, इटर्नल लाइट मिनिस्ट्री, सैम टेलर करके वहाँ के वो प्रेसिडेंट है। आसमान। यस, बैंगलोर में है। मैं वहाँ गया। उसके बाद 4 महीने का बाइबल कोर्स किया, और आने के बाद फिर मेरे अंदर एक बर्डन आया कि प्रभु, बहुत सारे लोग नाश हो रहे, यानी तुझे बिना जाने ही मर रहे हैं। और प्रभु, उनके लाइफ में इतनी निराशा, इतनी परेशानी है कि उनको बचाने वाला कौन है, छुड़ाने वाला कौन है, उनको मालूम नहीं कि वो इस जगत में है, जो उनको छुड़ा सकता है, उनको बचा सकता है और उन्हें चंगा भी कर सकता है। तो मेरे अंदर ये बर्डन आ गया 18 साल की उम्र में कि मैं जाऊंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा। और फिर मैं बॉम्बे आया। फिर मैं बॉम्बे आने के बाद अपने चर्च से जुड़ा रहा। चर्च में फिर मैं एक वर्शिपर के रूप में खड़ा हुआ, और फिर मैं उस समय में मेरी जर्नी शुरू हो गई वर्शिपर की। और मैं प्रभु से बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता था कि प्रभु, मुझे तेरी सेवा करनी है। और फिर मेरा बर्डन था कि मैं यूपी में जाकर, यानी यूपी साइड का बर्डन था, प्रभु मुझे सेवा दे। और मेरी पहली बुलाहट, यानी फर्स्ट टाइम मैं यूपी के तरफ, प्रभु ने दरवाजे खोले, जहां जाकर मैंने प्रचार करके बहुत सौ को प्रभु का वचन सुनाया। फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई। मैं मेरे चर्च में फिर वर्शिपर के रूप में वर्शिप करता रहा। समय ऐसे ही बीतते रहे, और जो बर्डन था, यानी सोल विनिंग का, आत्माओं को बचाने का, वो बर्डन और भी हावी होने लगा। और वाह। परमेश्वर के और करीब जाना, और उसके पास जाकर उन लोगों के लिए दुआ करना कि प्रभु, तू बचा ले लोगों को। फिर ये ऐसा बढ़ता गया, और फिर मेरे चर्च में मैं मेरे पास्टर के निकट में फिर असिस्टेंट पास्टर हो गया। मैं मेरे चर्च में पहला फुल टाइमर पास्टर बना। सन 2004 में मैंने पूरी तरह से, यानी जॉब छोड़कर 2004 में मैंने सेवकाई शुरू की, और अपने पास्टर के साथ रहकर उस चर्च को, यानी कार्य करने लगा, और सेवकाई बहुत बढ़ने लगी। और बढ़ते 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 बहुत सारे फल आए। और इतने फल आए, मुझे आज भी खुशी है कि आज मैं उस चर्च में नहीं हूँ। यानी प्रभु ने मुझे, फिर एक समय आया 2007 में, प्रभु ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं तुझे एक जगह लेकर जाना चाहता हूँ, एक मिनिस्ट्री देना चाहता हूँ जहाँ तू करे। तो मैंने मेरे पास्टर से और सारे लीडर से इन बातों को शेयर किया, और मैंने उनसे कहा कि पास्टर, प्रभु ने मुझे ये बोझ दिया है। फिर उन सभी ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, और मुझे रिलीज कर दिया कि तुम वाह। जाओ और प्रभु की सेवा करो। फिर मैं बाहर निकला, और फिर प्रभु ने मेरा अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं बाइबल कॉलेजेस में जाकर मैं स्टडी देता था। मैं लोगों को प्रेज एंड वर्शिप और अलग अलग सब्जेक्ट पर सिखाता था। और फिर बहुत सारे क्रूसेड्स, बहुत सारे सेमिनार मीटिंग्स, और प्रभु ने बड़ा अनुग्रह किया कि छोटी उम्र में बड़े बड़े सेवक, जिनको हम लोग हमारे, यानी मेंटर मानते हैं, और जिनको हम मानते कि इनकी तरह हमारा लाइफ हो, प्रभु ने उनके साथ हमें खड़ा कर दिया कि उनके साथ हम प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, मिलके यस। प्रीच कर रहे हैं, मिलके वर्शिप कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए, यानी समझ से बिल्कुल परे था कि जिसे जिसे मम्मी सोच रही थी कि ये नहीं चाहिए दुनिया में, लेकिन प्रभु को चाहिए था। और प्रभु ने इसीलिए मुझे रखा, ताकि उसकी महिमा करूं। और फिर ये सेवकाई बढ़ती रही, बढ़ती रही। फिर एक दिन मैंने प्रभु से, किसी ने मुझसे पूछा कि पास्टर, अपने चर्च का नाम क्या है? तो मैंने कहा, जस्टिन मिनिस्ट्री। तो हाँ। बोला, पास्टर, बहुत सौ के नाम है चर्च के, तो अपना भी कुछ नाम होना चाहिए। फिर मैंने परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना की कि प्रभु, चर्च का नाम क्या दूं? लोगों ने कहा, तो प्रभु ने कहा, हाउस ऑफ प्रेज मिनिस्ट्रीज रखना, जिसका मतलब है हिंदी में स्तुति का घर। तो फिर मैं ये सोचा कि
मेरी तो बुलाहट भी वर्शिपर की है और मैं जानता हूँ। और एक समय ऐसा आया कि एक प्रॉफिट प्रभु के दास मेरे पास आए थे और उन दिनों में ऐसा था कि मेरे माइंड में एक क्रेज था कि मैं एक प्रीचर बनूं। ये वर्शिपर को कोई वैल्यू नहीं देते क्योंकि हम हाँ, हम कितने भी वर्शिप करें, हम कितने भी प्रेजेंस ऑफ गॉड को यानी लोगों के सामने वो कर दे, तो सारा क्रेडिट जो है वो प्रीचर ही लेकर जाता है। क्योंकि वो आता है, प्रीच करता है क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म तैयार हो जाता है और वो प्रीच करने के बाद फिर जो कुछ भी होता है, तो सारा क्रेडिट उनको मिलता है और वर्शिपर को जस्ट यानी हाँ, बहुत अच्छा वर्शिप हो गया, खत्म इतना। तो मेरे माइंड में था कि प्रभु मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, मैं एक प्रीचर बनना चाहता हूँ क्या ताकि लोग मुझे कुछ बोले। लेकिन एक दिन प्रभु ने मुझसे प्रॉफिट के द्वारा बातें की और बोला जो वरदान तुझे दिए हैं, तू उसका इनकार मत कर। और फिर मुझे समझ आया कि आराधना करने का ये वरदान जो है, परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो मुझे उसे करना ही है और उस वरदान को निखारना है, यानी वो बहुत सौ को सिखाने के काम आना है। और फिर जब मैंने इसको किया और फिर चर्च का नाम आ गया हाउस ऑफ प्रेज मिनिस्ट्री और फिर चर्च परमेश्वर की दया से बढ़ना शुरू हो गया। जब मैंने शुरुआत की चर्च की, तब मेरे चर्च में केवल एक ही व्यक्ति था और Oh. हाँ, और पहले दिन की शुरुआत थी और मैंने करीबन एक वर्शिप टीम को जिसमें से एक सिंगर है, आज भी फेमस है, आकाश राय करके एक नेपाली सिंगर है, जिन्होंने अच्छे-अच्छे गाने गाए हैं। वो पूरे टीम के साथ नेपाली टीम के साथ आए और उन्होंने करीबन 7 से लेकर साढ़े 8 बजे तक 1.5 घंटा वर्शिप किया। और एक ही आदमी बैठा है और उन्होंने सोचा शायद बहुत सारे लोग हैं, अभी आएँगे और कोई ना था। और फिर मैंने कहा अभी 8:30 बज गए, मैं प्रीच करूँगा और मैंने प्रीच करना शुरू किया और जब मैं प्रीच करने के बाद खत्म हो गया सब कुछ प्रार्थना, तो उस भाई ने मेरे पास आकर कहा पास्टर अ, आप एक व्यक्ति चर्च में बैठा था और आप इतने ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला के प्रचार कर रहे थे, क्यों? तो मैंने कहा आपको एक दिखाई दे रहा है, मुझे पूरा हॉल भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो Wow. Wow, हाँ, amazing. तो तब उन्होंने Praise मुझसे God. कहा कि परमेश्वर आपकी सेवकाई को बढ़ाएगा और दिन-ब-दिन Amen. परमेश्वर ने कलीसिया की बढ़ोतरी ही की। मुझे हमेशा वो पद याद आता रहा कि लिखा है कि एक्ट चैप्टर में लिखा है 3rd में, 4th में, 3 में कि उन दिनों में जब 3000 के बाद जब पतरस के प्रचार के बाद 3000 लोगों ने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, लिखा है उसके बाद लोगों की बढ़ती हुई, घटती नहीं हुई। लोग कलीसिया में बढ़ते गए Mm. ऐसा वचन में लिखा है। तो फिर वो Yes. परमेश्वर ने अपने वचन को जो है पूरा किया, कलीसिया बढ़ती चली गई और परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि कलीसिया को इतना बड़ा कर दिया कि आज परमेश्वर की दया से हमारी जो हाउस ऑफ प्रेज मिनिस्ट्री है, करीबन 10 से 12 जगह चलती है। Wow. हाँ, तो ये परमेश्वर की बड़ी Amazing. दया है कि परमेश्वर ने बहुत जगह और इतने लोग दिए हैं चर्च में, जो परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं। तो मेरी जो ये जर्नी की शुरुआत इस रीति से हुई और फिर समय आया, फिर लोग मुझसे बोलने लगे ब्रदर या फिर कुछ और नाम से। फिर प्रभु से पूछा गया, प्रभु क्या कहोगे? मैं क्या कॉलिंग है मेरी? मैं आराधना तो कर रहा हूँ, फिर बुलाहट क्या है मेरी? फिर परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी। फिर उसने मुझे उसके पास्टर की बुलाहट में बुलाया, फिर अपोस्तल प्रेरित की बुलाहट में बुलाया है। तो अब जो है मैं बड़ा खुश होता हूँ जब कलीसिया में कुछ और गेस्ट आते हैं मेरे प्रीचर, तो वो जब आराधना देखते हैं और प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, तो बोलते हैं पास्टर आपके चर्च में ना प्रभु की बहुत उपस्थिति महसूस होती है। मुझे अभी भी Mm. याद है पास्टर एंथोनी राज जो है सिंगर, उन्होंने एक Mm. प्रीचर को जो मेरे चर्च आ रहे थे, उनसे कहा आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं पास्टर जस्टिन के चर्च जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ज़रूर जाइए आपको स्वर्ग का अनुभव होगा। Wow. तो ये हमें बड़ी खुशी होती है कि परमेश्वर ने जो जर्नी स्टार्ट की, अभी भी जर्नी शुरू है और इस जर्नी में हमेशा यानी खुशी नहीं रही, बहुत बार कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, कई बार विरोधियों का भी सामना करना पड़ा और कई बार यानी बहुत सारे बोझ, बहुत सारे दर्द को लेकर हमने ये सफ़र शुरू किया।
और इन सारी बातों में परमेश्वर ही मेरे साथ रहा। अगर वो ना होता तो मेरी जर्नी पता नहीं कहाँ होती, पता नहीं मैं गुंडागर्दी में होता या फिर अब तक मैं होता या नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने ये सफर जारी रखा है और आज भी जो है सफर जारी है। सो यस, सो पास्टर बहुत ही अच्छी कहानी है। एंड दूसरा सवाल पूछने से पहले हमारे व्यूअर्स का अगर कोई सवाल है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, वी रिक्वेस्ट यू टू टाइप इन द कमेंट सेक्शन एंड रॉल्स्टन उनको जो है पढ़ के दिखा देंगे। सो आपका कोई भी सवाल है पास्टर जस्टिन के लिए, आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे इसे टाइप कीजिए। सो मेरा सवाल था पास्टर, दूसरा सवाल कि पास्टर्स जो है क्या ये इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करते हैं? जैसे कि जब कोई यूथ चर्च में ग्रो हो रहा है, ठीक है, सो उसकी ग्रोथ में पास्टर का रोल इम्पोर्टेंट होता है? और ये आंसर करने से पहले मैं आपको एक इसको ऐड ऑन करना चाहूंगी। मेरे जो व्यूअर्स हैं बड़ी ठीक से अच्छे से सुने, ये मैं बोलना चाहूंगी उनको। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं आपके चर्च की हूँ और मैंने आज गिटार पकड़ा और मैंने बोला कि मुझे गिटार सीखना है और मैं गिटार सीख रही हूँ। लेकिन देर इज नो मेरे पास से कोई एनकरेजमेंट ही नहीं है, कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है। एंड बट मैं सीख रही हूँ क्योंकि मुझे परमेश्वर के लिए करना है। तो कहीं ना कहीं हम जो है थोड़ा लो हो जाते हैं, क्योंकि आज के जो यूथ है, अगर आप देखेंगे, अगर कोई पल उनको अप्रिसिएशन नहीं मिला या एनकरेजमेंट नहीं मिला तो वो सोचते हैं अरे ये क्या है ना, ये कुछ, तो वो समझ जाते हैं। आइदर दे विल टेक इट इन अ वेरी रॉन्ग वे कि बोलेंगे कि ये तो ना मेरे से ईर्ष्या रखते हैं या कुछ जलन बड़ा रखते हैं। ही, हाँ। ऐसे कभी कभी होता है, और ऐसे कभी कभी हुआ भी है कि हमारे जो लीडर्स है, एनकरेज है, दे मे नॉट रियली अप्रिशिएट अस और एनकरेज बिकॉज मे बी दे वर वेरी नॉट इनसिक्योर, जो कुछ भी। बट ये बहुत बड़ा एक डिस्करेजमेंट हो सकता है एक बढ़ते हुए युवक के लिए। आप इस पे क्या कमेंट करना चाहोगे? सबसे पहली बात तो ये है कि कलीसिया में मैं खुद, मेरे जो कलीसिया है उसमें जवान ज्यादा है मेरी कलीसिया में, और मैं परमेश्वर से यही दुआ करता हूँ कि कलीसिया में जवान ज्यादा हो। उसके उसका रीजन ये है कि जिस कलीसिया में जवान होंगे वो कलीसिया बहुत फास्टली बढ़ती भी है और वो कलीसिया बहुत एनर्जेटिक रहती है, उत्साहित रहती है। जिस कलीसिया में बुजुर्ग ही रहेंगे तो उस कलीसिया की बढ़ोतरी कैसी होगी, जबकि वो ना वो प्रीच करने के लिए बाहर जा सकते हैं, ना किसी काम में आ सकते हैं। और अगर कोई पास्टर ने किसी बुजुर्ग को बोला भाई आज आपको जो है ये काम करने के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा, तो वो बोलेगा पास्टर मेरा बदन दर्द है, आपको पता है मैं इस चीज का मरीज हूँ, तो मैं कैसे जाऊं। और इसी बात को जवान को बोले तो कर सकता है। तो पहली बात तो ये कि कलीसिया में जवान होना चाहिए। मैं जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी से कहना चाहूंगा, मैं खुद कई कलीसियाओं में जाकर मैं इस बात पर जोर भी देता हूँ और बोलता भी हूँ कि कलीसिया में ज्यादा करके जवान होने जरूरी है। आप जवान होंगे तब आप प्रभु का काम बहुत करोगे, अन्यथा आप काम नहीं कर पाओगे। तो मेरा ये जो सवाल था उस पर ये आंसर है कि जब कलीसिया में जवान को कुछ सीखना है तो पास्टर का जो रोल होता है वो ये है कि उसको हमेशा मोटिवेट करते रहे, इंकरेज करते रहे। भले ही उसको गिटार बजाना नहीं आता हो तो भी उसको बोले यस तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम सीख जाओगे, कोई बात नहीं, तुम सीख जाओगे। तो इससे क्या होता है कि अगर उसे बजाना भी नहीं आता तो भी वो उस पास्टर की बातों को जहन में रखकर बजाने की, सीखने की कोशिश करता है कि यस पास्टर मुझे इंकरेज कर रहे हैं। मैं अपनी कलीसिया में कई बार मैंने कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट लिए जो मैंने चाहा कि बजाने वाले हो। मैंने लोगों को इंकरेज करता रहता हूँ, अभी भी करता हूँ, पहले से भी कर रहा हूँ कि जवानों ये तुम्हें बजाना है, तुम ये बजाओ, मैं ये चीज लूंगा तुम्हारे लिए। फिर मैंने लोगों के लिए बजाने के लिए कीमती कीमती चीज लिए कि तुम ये बजा, तो वो मोटिवेट हो जाते हैं, अरे पास्टर ने ये बोला,
मुझे बड़ी खुशी होती है कि चर्च के जवान मुझसे अभी भी बोलते हैं, पास्टर मैं ये करूँ क्या? पास्टर मैं वो करूँ क्या? तो मुझे बड़ी खुशी होती है, वो पूछते हैं और फिर मैं उनको बोलता ना, यस डू इट, तुम ये कर सकते हो, कर दो। और वो करते हैं तो बहुत उत्साहित होते हैं। तो पास्टर का पहला काम है कि वो अपने जवानों को हर मोड़ पे उनको Yes. साथ दे। वो क्योंकि आज की Amen. जो स्थिति है वो ऐसी है कि मुझे याद आता है आज से करीबन सन 2012 में हम एक पास्टर कॉन्फ्रेंस में थे और वहां पर एक पास्टर थे जो सोशल काम में भी थे। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि उनके साथ जो डॉक्टर काम करते हैं, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लोगों की जो मानसिकता है वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहेंगे और वो इस दुनिया में इतनी बातें बढ़ती जाएगी जिससे वो डिप्रेशन के भी शिकार हो जाएंगे। तो मैंने ये चीज जो है मैं दो सन 2012 के बाद बहुत समय देखा कि जवान लोग बहुत सारी बातों से जल्दी से निराश हो जाते हैं। Yes. वो हाँ, फिर कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो उनको उठाना नहीं चाहिए। तो और इसमें क्या होता है कभी-कभी कुछ पास्टरों की भी गलत बात होती है कि वो उनको मोटिवेट नहीं करते। वो उनको हर क्षण क्या कर देते हैं, उनको पुलपिट से नीचे कर देंगे। उनके उस टैलेंट को समझेंगे नहीं, उनके मज़ाक उड़ाएँगे और इस कारण से क्या हो जाता है, वो जवान पूरी तरह से निराश हो जाता है। फिर उसके अंदर कुछ करने का जज़्बा या आगे बढ़ने का जज़्बा जो है वो आ गए ना वो ठंडा हो जाता है और ये Yes. नहीं होना है, ये नहीं होना है। हमें हमें ये बहुत ज़रूरत है। अगर हमारे भारत का अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हमारे देश में यूथ जो है वो 70 करोड़ से ज़्यादा है। तो हमारे देश में यूथ ही स्ट्रॉन्ग है, तो चर्च में भी यूथ ही होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर Yes. वो यूथ रहेंगे तो चर्च बहुत बढ़ता है और यूथ जो है वो पास्टर का साथ देता है। Hmm. वो हमेशा पास्टर जो बोलेगा वो पास्टर के आगे नहीं जाएगा। Yes. अगर उसे पता है कि मेरा पास्टर मुझ पे ट्रस्ट रखता है, मेरे पे Yes. भरोसा रखता है, तो वो जवान हमेशा पास्टर के साथ रहता है। मुझे मेरे कलीसिया के कई मेरे जवानों पर मुझे नाज़ है क्योंकि वो लोग हर बात मानते भी है और अगर मैंने किसी से कहा कि भई तुम्हें ये नहीं करना है, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, वो नहीं करते। क्योंकि उन्हें पता Wow. है कि पास्टर को ये बात हमें समझा रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि एक जवान ने बात नहीं सुनी और जब उसे ठोकर लगी तो उसने याद किया और बोला, "ओह! पास्टर ने मुझे बताया था, सच में मैं ही गलत था।" फिर वो आकर मुझसे मिला, बोला पास्टर मेरी भूल हो गई, मुझे माफ़ करो। और पास्टर का हृदय हमेशा जो है, एक बाप का हृदय होना चाहिए। Yes. कठोर या Amen. जलन वाला नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या Yes. वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर यूथ में और पास्टर में ये अनबन रहती है कि अगर यूथ अच्छा आराधक है, लोग उसको लाइक करने लगते हैं। अरे! Correct. आप बहुत अच्छी आराधना करते हो, आपकी सिंगिंग इतनी अच्छी है, वॉइस इतनी अच्छी है, कभी-कभी आप प्रीच भी करते हो तो बहुत अच्छा होता है। वो पास्टर का भी इतना अच्छा नहीं होता जितना आपका अच्छा होता है। तो जब ऐसी बातें होती हैं, तो एक चीज़ ज़रूरत है कि हम इस बात को समझना कि हम जवानों को ऐसी स्टडी दें कि कोई भी उसे अगर इस बातों से ललचाए या बोले, उसको बूस्ट करे, उसको इस रीति से एनकरेज करे कि तुम पास्टर से भी अच्छा हो, तो वो उस समय ये बोलना चाहिए नहीं मेरे पास्टर मुझे सिखाए हैं, मेरे Yes. पास्टर ने मुझे ये बात डाली है। तो इसी रीति मैं ऐसा कर रहा हूँ। तब पास्टर भी खुश होता है और पास्टर को अपने जवान पर भरोसा रहता है। लेकिन पास्टर का ये बड़ा रोल है कि वो अपने जवानों को हर बातों में कोऑपरेट करे, हर Yes. वक़्त उसको साथ दे। क्योंकि वो लोग वो अनुभव में नहीं पहुँचे हैं, जो अनुभव पास्टर को होता है। क्योंकि Yes. पास्टर सभी को लेकर चलता है, उसे पता है किसकी सोच क्या है, किसके माइंड में क्या चल रहा है। तो ऐसे में पास्टर उसका साथ दे, ना कि उसको डिस्करेज करे, जिससे वो Yes. क्या क्या हो जाए, फिर वो चर्च छोड़ देता है। और जब Yes. चर्च छोड़ देता है, फिर कुछ पास्टर क्या होता है उसकी बुराई शुरू कर देते हैं। उसने Hmm. चर्च इसलिए छोड़ा, उसलिए छोड़ा। सही रियल स्टोरी नहीं बताते। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा उन सारे जवानों से कि भई
आप अपने पास्टर के साथ जुड़े रहे। और मैं उन पास्टर से भी कहना चाहूंगा कि अपने जवानों को आप अच्छे से ट्रेन करें, और एक जवान बोल के नहीं, एक फ्रेंड बनकर उनके साथ रिलेशन रखें। तो देखिए वो आपके साथ कितने खुलेंगे और वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। यस पास्टर, जब क्या होता है ना, अगर मैं चोरी कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं चोरी कर रही हूँ तो मुझे मेरे पास्टर करेक्शन दे रहे हैं, तो वो सही बात है, उस करेक्शन को ले और वैसा चले। लेकिन कभी कभी यूथ लोग कुछ अच्छा काम करते हैं तो फिर भी कोई एनकरेजमेंट आता नहीं है। तो उस बात पे जो है, जैसे पासवान ने कहा कि आप उनको मोटिवेट करें और आप उनको फ्रेंडली रिलेशन बना के रखें, कि ये बहुत अच्छी बात बताई पास्टर आपने। मेरा अगला सवाल इस पे ये है, आपने कहा कि आप असिस्टेंट पास्टर बने पहले, ठीक है, यस। और जब परमेश्वर ने आपको आपकी बुलाहट के बारे में जब बताया, तो आपने आपके लीडर्स से शेयर किया, ओके, एंड देन आप जो है अलग से आपका मिनिस्ट्री, अलग। ये हाँ, ये प्रोसेस कैसा था पास्टर के, मतलब आपने उनको जाके बताया और वो अच्छी तरह से मान गए और आपको रिलीज किया, ये बहुत अच्छी बात एक्चुअली आपने बताई। तो हम उस प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत शांति से हुआ या फिर वदे? हाँ हाँ हाँ, हाँ मैं समझ रहा हूँ आप लोग की बातें। हाँ प्रीति, ऐसी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि जब कभी कोई कलीसिया से अलग होता है तो 90% जो है वो झगड़े से ही अलग होते हैं। ओके क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पास्टर का असिस्टेंट पास्टर का नहीं जमता, यानी उनके मेल नहीं होते। तो फिर क्या हो जाता है, असिस्टेंट पास्टर अलग हो जाता है। और फिर ऐसा होता है कि कुछ असिस्टेंट पास्टर चर्च के आधे लोगों को लेकर चले जाते हैं, या फिर उनको गुमराह करते हैं, उनको घर जा जाके विजिट करने लगते हैं, और फिर बोलते हैं मैंने प्रेयर चालू किया तो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। लेकिन जब मेरे साथ ये बात हुई तो मैंने इससे पहले प्रार्थना में रखा कि प्रभु तूने मुझसे बातें की है। क्योंकि मुझे याद आता था, प्रेरितों के काम 6वें अध्याय में लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 6 में लिखा है कि जब समय आया कि सेवकाई बहुत बढ़ने लगी, तब लिखा है कि लोगों में खाने पीने की भी सेवा बढ़ने लगी। और तब कई अपोस्तलों ने, ये प्रेरितों ने डिसाइड किया कि देखो हम खाने पीने की सेवा में ना रहे, हम अपने मोटिव से, यानी अपने उद्देश्य से हम भटक रहे हैं कि सोल विनिंग करना है हमें। तब उन्होंने प्रेयर किया और 7 लोगों को चुन लिया, जिसमें से एक स्टीफन था, जिसे स्टीफनुस हिंदी में कहते हैं। तो इन सभी के लिए प्रेरित जो पुरनी है, यानी जो लीडर्स है, चर्च के जो लीडर्स है, उन लोगों ने उनके लिए दुआ की और उनको रिलीज किया कि तुम जाओ और सेवा करो, और हम यहाँ पर अपने चर्च में सेवा करते रहेंगे, पर तुम बाहर जाकर आउटरीच करो, सेवा करो। तो फिर मैंने प्रार्थना की इस बातों के लिए, और प्रभु से कहा प्रभु मैं अपने पास्टर से और लीडर से मैं शेयर करने वाला हूँ, तो आप मेरी सहायता करें। और फिर मैंने इस बात को जाकर उनके सामने रखा। देखिए, प्रभु ने अब मुझे सेवा दी है, और प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं तुझे अलग सेवा दे रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि देखो ये सेवा प्रभु ने बोली है, मैं अब अलग हो रहा हूँ। और सभी ने मेरे साथ शांति के साथ हमने व्यवहार करते हुए, सबने वाह मेरे लिए प्रेयर किए, मुझसे गले लगे, सब लोगों ने मुझे रिलीज किया। और मैंने उस बात को बड़े, और वो मेरे लिए अभी भी दुआ करते हैं, मैं भी दुआ करता हूँ कि हमारा रिलेशन आज भी बहुत पहले जैसा है। आज भी हमारा कोई रिश्ते में दरार नहीं है, कुछ नहीं है, आज भी रिश्ता गहरा है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हाँ, यस, ये था कि जैसी बात, यानी एक शब्द में कह दूं कि कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ झगड़ा करके ही अलग होते हैं। ऐसा हम्म, कभी ना होने पाए। आप ये अपने पास्टर के अधीन रहकर उनसे पूरी तरह से सलाह लेकर जाए। हम्म क्यों मैं हम्म कहना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल इस बातों का सिद्धांत है, प्रिंसिपल यही है। यीशु मसीह भी पिता के अधीन था, और पिता को छोड़ के उसने कभी भी अकेले कुछ नहीं किया। उसने कहा मैं वही करता हूँ जो पिता मुझसे कर बोलता है। तो वैसे ही होना चाहिए। जब हम अलग हो तो शांति के साथ एक आनंद प्यार हो, और ये रिश्ता जो है हमेशा कायम रहे, कि कल अगर मेरे सीनियर पास्टर को कभी कोई जरूरत आन पड़े तो मैं दौड़ कर जाऊं, और मुझे कोई जरूरत आन पड़े तो वो दौड़ कर आए। वाओ ये वाओ, हाँ, ये रिश्ता हमेशा होना जरूरी है।
प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। रॉल्स्टन, आपका कोई सवाल है? क्योंकि मैं अभी पास्टर को प्रार्थना करने को, उससे पहले अगर आपका कोई सवाल है। यस, एक क्वेश्चन है। हाँ। यस पास्टर, वन यस क्वेश्चन ये है कि इसमें ऐसा लिखा है कि योर रिलेशनशिप विद द यूथ, आपका रिलेशन आपके यूथ के साथ जब कितना स्ट्रांग रहना चाहिए फॉर देम टू ग्रो इन द चर्च? हाँ, तो इसका उत्तर ये है कि आपका आपके जवानों के साथ जो रिश्ता है वो सबसे पहले प्यार से होना चाहिए। कि आपका आपके जवान के साथ ओपन हार्ट वाला रिलेशन होना चाहिए। कि ना आपका उसके उसके प्रति आपके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए और ना ही उसके अंदर आपके प्रति कुछ होना चाहिए। दोनों एक प्रति ओपन हार्ट रहना चाहिए कि कोई भी बात हो तो एक दूसरे से शेयर करना है। पास्टर ये बात मुझे जरा सी ये लग रही है, पास्टर आप मुझे खुलकर जरा सा बताइए, या फिर पास्टर मुझे ये बात बुरी लगे तो आप मुझे इसके लिए कुछ ये कीजिएगा। तो जब ये बात आमने सामने जब खुली जाएगी तब हमारा रिश्ता जो है वो बहुत गहरा हो जाएगा। और फिर वो जवान जो है जिंदगी में अपने पास्टर को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा। उसका ये घनिष्ठ रिश्ता भी बना रहेगा और वो यस, चर्च के लिए इतना काम आएगा कि वो जैसे अपने पास्टर को अपना रोल मॉडल समझेगा, आने वाला जवान भी उस जवान को देखकर अपना रोल मॉडल समझेगा कि जैसे तुमने रिश्ता रखा है वैसे मैं भी रिश्ता रखूंगा। ये होना चाहिए पास्टर और जवान के बीच में एक ओपन हार्ट वाला रिश्ता, कि कुछ भी हाइड नहीं होना चाहिए, सब यस, ओपन होना चाहिए। तो तब यस, वो याद रखिएगा, जवान जो है आज की तारीख में बहुत सेंसिटिव है। वो जल्दी से अपनी बातें जो है ना उनको नहीं बताएंगे जिस पे ट्रस्ट नहीं। इसलिए करेक्ट। इसलिए आज कई जवान जो है वो अंदर ही डिप्रेशन में निराशे में जा रहे हैं। इसलिए आज कई विश्वासी लोग प्रभु को भी छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको समझने वाला कोई नहीं है। वो कभी कभी बोलता है मेरे पास्टर को मैंने बताया वो मेरे को समझ नहीं रहा है, ये हो गया वो हो गया करके। इसलिए आज जवानों को बहुत सख्त जरूरत है। इसलिए उसके साथ एकदम जाओ, उनको होटल लेकर जाओ, उनके साथ थोड़ा सा चाय नाश्ता गपशप विपशप करो, थोड़ा सा पिज्जा खाओ, यानी थोड़ा सा इतना फ्री हो जाओ कि आप ये भूल जाओ कि आप पास्टर हो। आप ऐसे उसके साथ रहो कि तुम भी जवान हो मैं भी जवान हूँ, भले हमारे में एज में 50-30 का ऐसा कुछ, लेकिन डिफरेंस है। एकदम फ्रेंडली रिलेशन रखो, ओपन हार्ट। तो देखो ये जो रिश्ता है वो इतना गहरा हो जाएगा कि कल अगर कोई आपके पास्टर के बारे में भी कुछ कहे तो वो जवान वही के वही उसे टोक देगा, और जवान के बारे में कोई कुछ कहे तो पास्टर वहीं पर उसे टोक देगा कि वो मेरा बच्चा है नहीं मेरा जवान है, तुम्हें बोलने के अधिकार नहीं। यस, तो ये हमारा Yes. ये गहरा रिश्ता होने से ही वो एक दूसरे के प्रति स्ट्रांग रहेंगे। यस, यस। तो बहुत अच्छी बात कही पास्टर ने। और मैं सारे यूथ को इसी बात को लेकर एनकरेज करना चाहूंगी कि आप आपके पासबान के सबमिशन में चलिए, और उसी तरह पासबान भी जो है, क्योंकि अगर यहाँ से ना इट वर्क्स बोथ वेज, सो यस पासबानों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप उनके ट्रस्ट को रखें, और अच्छा रिलेशंस को मेंटेन करें, उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें एनकरेज करें, और करेक्शन भी दें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रॉल्सन, इज देयर एनीथिंग एल्स? मैं अभी पास्टर को समाप्त करने से पहले प्रार्थना करने के लिए बोलने वाली थी। ओके, सो पास्टर, हम चाहते हैं कि आप जो है हमारे सारे व्यूअर्स के लिए जो है प्रार्थना को करें। चलिए हम लोग प्रे करते हैं। Okay. महान परमेश्वर पिता, फिर एक बार मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस अनवेल टॉक्स के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस टीम के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जिन्होंने प्रभु जी ये बर्डन लिया है, और प्रभु तेरे लोगों के जर्नी के बारे में, ताकि लोग जान सके कि उस जर्नी में परमेश्वर आप उनके सेंटर पॉइंट रहे हैं, और परमेश्वर आपने लोगों के जीवन में कार्य किए हैं। मसीह मेरी प्रार्थना है इस अनवेल टॉक्स टीम को प्रभु जी तू आशीष कर, परमेश्वर ये विजन और बड़ा हो जाए, और परमेश्वर इस विजन के लिए हर एक चीज का प्रोविजन करे प्रभु जी। और मसीह मेरी ये प्रार्थना है जितने व्यूअर्स है, जितने लोग प्रभु इस परमेश्वर शो को, या फिर परमेश्वर
इन बातों को जब देखते हैं, सुनते हैं परमेश्वर इस प्रोग्राम को, मेरी ये प्रार्थना है कि तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छू लेने दे। परमेश्वर उनके हृदय में तेरा कार्य हो। प्रभु यीशु मसीह का नाम उनके जीवन में ऊंचा उठे। वे अपने जीवन में परमेश्वर ये जाने कि प्रभु यीशु तू उनके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है, और प्रभु यीशु मसीह वो तेरे लिए जिए। परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है, आज जवान परमेश्वर तेरी ओर, तेरे क्रूस के पास मुड़ जाए। परमेश्वर आज अपना जीवन पूरी तरह से समर्पण करे। मेरी ये प्रार्थना है मसीह। प्रभु सारे व्यूवर्स को तू ब्लेस कर, उनके हर एक डिजायर को फुलफिल कर, उनके और उनके पास्टर का रिलेशन स्ट्रांगली, हैप्पीली और प्रभु फ्रेंडली बना, और प्रभु एक प्यार का रिश्ता और एक सबमिशन का रिश्ता, और परमेश्वर एक पिता और एक बेटा बेटी का रिश्ता बनने रहे। और मेरी प्रार्थना प्रभु जी, इन सारी बातों पर आपका ग्रेस मांगते हैं, और प्रभु तेरे हाथ उन पर बढ़ा, और यदि कोई बीमार है तो उन्हें तू चंगाई बख्श। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में प्रभु। ये प्रोग्राम प्रभु मैं बिलीव करता हूँ आने वाले समय में प्रभु ये टीवी पर भी टेलीकास्ट होगा इन जीसस नेम। प्रभु मैं इस बातों पर पूरा पक्का विश्वास रखता हूँ। ये प्रोग्राम एक दिन टेलीकास्ट प्रभु टीवी पर होने वाला है। खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तुझे स्तुति देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आमेन। बहुत धन्यवाद पास्टर आपका। और इस समय जो है मैं एक और बात को बोलना चाहती हूँ कि नेवर लीव योर चर्च। ओके, एक चर्च से दूसरे चर्च में ऐसे उड़ान को ना कीजिए, because it only shows that how unstable you are in your life. Because what happens if the Lord has really spoken to you that you have to shift from one church and start your own ministry, that same peace has to come to your elders और आपके जो pastors है या आपके जो leaders है, उन्हें वो same शांति even उनके मन में भी, जैसे परमेश्वर ने कोई बात आपके मन में डाली है और शांति को भी डाली है, वो same शांति जो है उनके मन पे भी आना चाहिए। Now our today's guest happens to give a very good example कि आप जो भी, अगर आपको खुद की ministry का भी जो बुलाहट आया है, you do it with lot of submission, with lot of obedience, which is दोनों भी जो है ये की है ब्लेसिंग के लिए। सो मैं इसी नोट के साथ यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगी, और उसी तरह मैं अपने सारे व्यूअर्स का फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी, और हमारे गेस्ट को भी धन्यवाद देना चाहूंगी ऑन बिहाफ ऑफ अनवेल टीम, ऑन बिहाफ ऑफ लेट्स लिव लाइफ, ऑन बिहाफ ऑफ आवर पास्टर ऑस्टिन। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने पहले कुछ नामों को लिया था लास्ट सेशन में। मैं इस समय जो है हमारे सारे जो चर्च मेंबर्स है, प्रणीता, जेरूशा, दिव्या, क्रिस्टी, जेपी, और जो मेरी सिस्टर इन लॉ क्रिस्टीना, और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, जैसे मैंने कहा जब भी मुझे नाम याद आएगा मैं जरूर लेना चाहूंगी, और मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। एंड यही कहना चाहूंगी कि पास्टर फिर से आपको बहुत धन्यवाद, आपने हमारा थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। प्रभु तुम सभी को आशीष करे। Pleasure is all ours, Pastor. Thank you so much. Thank you so much. And परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और परमेश्वर के वचन में बढ़िए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, which is going to help you, and stay connected to us, and God bless you all. Have a nice time. Thank you.